Debate and then decide, not disrupt. This is one. Secondly, government proposes, opposition opposes, and the House disposes. But you must allow the House to dispose, na? You don't allow the House to function and then create this thing. That is not a healthy trend. This is not a healthy trend, because once, if you accept that, then people will start doing that. That's why my appeal to all the leaders of different parties, please understand the need to maintain decency and decorum, standards and values of this great house. We are elders' house. The scenes that are appearing in television, they are paining every Indian and hurting the image of this house, August House. And now trying to put the blame on somebody and put the blame on the chair and try to make it very simple, as if it is only concerned with that particular bill. That's not fair. So let everybody do some introspection. And then if there is some procedural this thing what is to be followed, that can be followed. Members are free to convey to me or bring to my notice also. I am always willing to go through that. जैसा मैंने कहा, मुझे बताया गया कि इतना सब होते हुए भी आज उपसभापति श्री हरिवंश जी ने, वो लोग को भी समझ में आना चाहिए, उन्होंने ये जो काम किया वो स्वीकार नहीं है, पार्लियामेंट्री पद्धति में उसको स्वीकार नहीं कर सकते, और वो अपना जो किया उसको वो लोग सेटरेट करने के लिए पश्चाताप हो रहे, तो वो बताए तो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा भी होगा, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ टू ऑल पीपल, प्लीज फॉलो द रूल्स, regulations and try to keep up the standards of this one. And for the sake of the record, I want to further say that the day full time was allotted for discussion was over. Deputy Chairman went on record 13 times saying that he is willing to go for division. If you go to your seats, if you are in order, then creating disorder and then asking point of order is not going to make any help. I am just reiterating that. And then, as far as the House traditions are concerned, as I told you, I am not happy to quote them. How many times members were suspended, when, who, all those details are there for some people who want to make study. I appeal to the media also, please understand the issue fully. Don't try to focus it only on one incident and then try to put it in such a way. Try to understand the background of the entire issue, and my duty, my worry is running the House. You make free speech parliamentary within the parliament system. Attack the government, no problem at all. Government must respond and they will respond to their ability. You are not happy. What is the way in parliament? Talk out, walk out, or vote out. Otherwise, democracy will be all out. This has to be understood by one and all. Often I have been saying this because this new tendency has come. Please understand this and see to it that everybody follows this thing. The Honorable Minister of Education was speaking about the Triple IT Amendment Bill. We can continue and then the House will sit as long as it is necessary, and then chair will decide after taking the vote of the House. And I once again appeal to all the parties, their leaders, please rethink, retrospect, come back to the House, participate in the discussion. उपसभापति जी, कल मैंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्राइवेट पब्लिक भागीदारी अधिनियम 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। और उपसभापति जी, मैंने कहा था कि कुल
हमारे देश में 25 ट्रिपल आईटी हैं, जिसमें से 5 विशुद्ध तरीके से जो केंद्र सरकार संचालित करती है। इसमें प्रयागराज है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, कुर्नूल है, और जो 15 ट्रिपल आईटी हैं वो पीपीपी मोड में संचालित हो रहे हैं। वो 2017 के अधिनियम से संचालित हो रहे हैं। उपसभापति जी, हम जो 2014 में आंशिक संशोधन के लिए लाए थे, इस बिल के माध्यम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2014 की धारा 41(3) के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की काउंसिल की सदस्यता में उत्पन्न शाब्दिक बेमेल को हम समाप्त करना चाह रहे थे। उपसभापति जी, एक जगह वहाँ निर्वाचित के स्थान पर नाम निर्दिष्ट शब्द की स्थापना होना है, ताकि धारा 41(3) धारा 40 के अनुरूप हो जाए और अधिनियम की समरूपता हो जाए, और जो इस अधिनियम की मूल भावना है वो उसके अंदर समाहित हो जाए। दूसरा, जो 2017 का जो अधिनियम है उपसभापति जी, इस अधिनियम के तहत निजी भागीदारी में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में 15 संस्थान हैं, जिसमें श्री सिटी चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, गुवाहाटी असम में है, वडोदरा गुजरात में है, सोनीपत हरियाणा में है, ऊना हिमाचल प्रदेश में है, रांची झारखंड में है, धारवाड़ कर्नाटक में है, कोट्टयम केरल में है, और नागपुर महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है, सेनापति मणिपुर में है, कोटा राजस्थान में है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, कल्याणी पश्चिम बंगाल और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये संस्थान ट्रिपल आईटी पीपीपी मोड 2017 के अधिनियम द्वारा संचालित हो रहे हैं, और इसी में जो 5 नए हैं उपसभापति जी, जो 5 सूरत गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, भागलपुर बिहार, अगरतला त्रिपुरा और रायचूर कर्नाटक में जो स्थित और जो अभी संचालित हुए हैं, इन 5 को अब इस अधिनियम के तहत लाने का दूसरा ये प्रस्ताव आज हम आपके सामने, इस सदन के सामने लाए हैं। इसमें समाहित होने से, इस अधिनियम के अंतर्गत इसके 5 को आने से ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो जाएंगे और इन्हें डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी इत्यादि उपाधियां देने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। मुझे ये कहते हुए भी सदन को खुशी होती है महोदय कि इन ट्रिपल आईटी में 14,000 विद्यार्थी बीटेक, एमटेक और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 450 संकाय सदस्य अध्यापन करा रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का एक तो उद्देश्य उद्योगों की सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के अनुसार उनके पाठ्यक्रमों को तैयार करना, अब विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विकसित करना है, और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण और शोध कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता देना है। ये नए संस्थान इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत अहम रोल अदा करेंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी है उपसभापति जी कि ये देश का एक नवीनतम ऐसा मॉडल है जो अद्भुत है। ये भारत सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के बीच एक समन्वय करके ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है जो राष्ट्र की प्रगति में अपना शिखर स्थान सुनिश्चित कर सके। और इसलिए ये जो 5 आज इसके साथ जुड़ रहे हैं, ये निश्चित रूप में भारत का गौरव बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में हमारे आईआईटीज ने हमारा गौरव बढ़ाया है। इन 5 को भी इसके साथ समाहित करते हुए मैं सदन से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल को वो सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। श्री पीएल पुनिया एब्सेंट। श्री कामाख्या प्रसाद तासा सर, लोकसभा फ्रॉम लोकसभा, हाँ बोले तासा जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल अमेंडमेंट 2020 पर बोलने के लिए परमिशन दिया। मैं हमारा पार्टी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मेरे को बोलने का मौका दे रहा है और मैं इसका समर्थन में बोल रहा हूं। मैं सरकार को
इस कदम उठाने के लिए सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सरकार जो है, ये सरकार एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने उसका बिल उत्थापन का टाइम में जो बोला है, पहले वो लोकसभा में भी बोल चुके हैं, और मिनिस्टर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्या इसको उन्होंने लाया, रमेश पोखरियाल जी मंत्री बनने के बाद नया एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे परिवर्तन आने का विचार भी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी इसको परमिशन दिया और कैबिनेट में लाने का विचार भी किया। सर, आप ऑनरेबल मंत्री जी ने बोला क्या हम लोग का यहाँ पर इंडिया में जो उच्च शिक्षा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाना चाहिए कदम उठा रहा है। जैसे उन्होंने बोला 5 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रहा है, और बाकी 15 जो अभी 15 था वो भी चल रहा है। बाकी जो रह गया, जैसे 5 रह गया था, ये 5 गुजरात, सूरत, भोपाल मध्य प्रदेश, भागलपुर, अगरतला और रायचूर, ये 5 को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट घोषणा कर रहे हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है ऑनरेबल मोदी जी का नेतृत्व में, ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी लिया है क्या जो विश्व स्तरीय संस्थान है, विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए जो व्यवस्था है इसको बढ़ावा दे रहा है। मेरा घर का पास ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन था, उसको भी अभी ये इनसे जोड़ा नहीं है, फिर भी उसको भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को जोरहाट को नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया है, और इसमें बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है। मैं सर जो पीपीपी मॉडल में क्या है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला ये पीपीपी मॉडल एक अनोखा मॉडल है जहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और औद्योगिकों तीनों ने मिलाकर चलाएगा। ये फर्स्ट मॉडल है जो मॉडल अच्छी तरह से चलेगा सर। और मैं मंत्री जी का जो आश्वासन है, इसमें आश्वासन नहीं है, जो प्रतिश्रुति है जो बोला है, ये आई थिंक इट विल इन लॉन्ग रन में इसको बहुत अच्छा हम लोग को फल मिलेगा। Sir, PP along with this existing 15 Indian institutes of information in public-private partnership made as an institute of national importance with power as awarded degrees. पहले तो नहीं था, अभी award देने का जो व्यवस्था कर रहा है, this will entitle them to use as a B.Tech, M.Tech और PhD degree issued by the universities. सर, ये इंस्टीट्यूशन जो है मोर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने का व्यवस्था है, और रिक्वायर्ड डेवलपमेंट जो है स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड इन द काउंट्री इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो कैबिनेट में इसको लाए और कैबिनेट ने इसको प्रवचन दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश में जो विश्व संस्थान है, इसको मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को इसलिए धन्यवाद भी देता हूँ। कोई कुछ बोले वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जो देख रहा हूँ, देश जो देख रहा है, इसको तरक्की की तरफ बढ़ाने का व्यवस्था भी कर रहा है। सर, ये 5 ट्रिपल IITs जो है, जो जितना जानकारी है, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 का आधार में रजिस्टर्ड था। इसमें कुछ क्षमता भी नहीं था। अभी नेशनल इम्पोर्टेंस होने के बाद ये ट्रिपल IIT का बाद आएगा जो दे कैन अवार्ड डिग्रीज। सर, अभी जो नया वर्ल्ड है, जो देश बनाने का बात कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस को महत्व रखते हुए 5 जो IITs है, इसको ऑनरेबल मंत्री ने नेशनल इम्पोर्टेंस किया है। इसका तरफ जो 5 IIT मैं देखा, अगरतला का स्टूडेंट्स भी था, मेरे को बोल रहा था कि हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। हम जब त्रिपुरा पहुंचे, स्टूडेंट्स लोग बोल रहा था, अभी इनका ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करने का बाद ये 5 IIT आपका स्टूडेंट्स अभी इसका मनोबल बढ़ेगा, और दे विल बी सिक्योर्ड इन फ्यूचर। ये इसका नौकरी के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इन लोग हाथ बढ़ा है, इसमें उन लोग को जाने के लिए एक रास्ता मिल गया, और फ्यूचर जो विजन है, विजन को आगे लगेगा। सर, आपने जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2014 इंडियन इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट पार्टनरशिप में है 2017-2014 इसको संशोधित किया गया है, और टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है, इस चैलेंज का सोल्यूशन करने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ये चैलेंज जो है सर, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कोविड का बात बोल रहा है, मेरे को लगता है कोविड का टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा महत्व रहेगा। इसका बाद जो पोस्ट कोविड पीरियड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। सर, हमारा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जैसे सत्ता संभालने के बाद मैक्सिमम संस्थान को वर्ल्ड क्लास बनाने के ट्राई किया। आईआईटीज बोल के नहीं, आईआईटीज जो है आईआईटीज तो है ही, आईआईटीज को फिर और ऊंचा इसको मर्यादा देने का भी सोच रहे हैं। और प्रॉब्लम्स जो है इसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी बोला है, पर्सनली ही टोल्ड अस दैट टीचर अपॉइंटमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, जितना सपोर्ट चाहिए इसका मीट करने के लिए हम लोग का सरकार प्रयास कर रहा है। और ये मीट जब होगा, जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इस प्रॉब्लम्स का बाद हम लोग सोचता है क्या आईआईटीज जो है ट्रिपल आईटी का मर्यादा बढ़ेगा, बाकी इंस्टीट्यूशन का भी ये बढ़ने वाला है। इम्पोर्टेंस घोषित करने का मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट में, अब मैं बोला एनआईडी, जब एनआईडी स्थापित हुआ जोरहाट में तो इसका महत्व नहीं था। बाद में मिनिस्टर कॉमर्स ने इसको जब नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया, इसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। ये अगरतला है या भोपाल है या रायचूर है, ये पांचों आईआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का महत्व बढ़ेगा। इसमें पढ़ने वाला, इसमें एजुकेशन देने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फिर आकर्षित होगा। और मैं चाहता हूं कि ये ठीक सर, ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इस टाइम का एक बुलंद कदम है जो हम लोग का सरकार ने उठाया है। सर ये मैं देख रहा हूं क्या ट्रिपल आईआईटी बोल के नहीं, हम लोग का गवर्नमेंट ये हायर स्टडीज को छोड़ के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, PMVKY, ऐसा जो छोटा छोटा है कौशल विकास के लिए जो काम करना चाहिए, इसमें भी हाथ आगे बढ़ा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का व्यवस्था भी कर रहा है। चेयरमैन सर, मैं माननीय पोखरियाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्या उन्होंने ऐसा जो हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर होने का बाद जो प्रयास कर रहे हैं, अपना बयान में वो कहा है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा PPP मॉडल आया है, पहली बार है। वो बोला है, लोकसभा में बोला है, आप भी बोल रहे हैं, जहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उद्योगों के बीच में ज्वाइंट मैनेजमेंट से चलेगी। 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपया का लागत से वो स्थापित होने वाला 50% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 30% राशि राज्य सरकार और 50% राशि उद्योग क्षेत्र से आएगा। ये हम लोग का जानकारी है। जॉइंटली ये संस्थान चलेगा और अच्छे से चलेगा। और ये इसीलिए अच्छा है कि उद्योग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जो उनका जो ज़रूरत है उसका मुताबिक उन लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स देने का विचार भी कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां पर पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें कुछ अलग की व्यवस्था भी किया हुआ है। जहां पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, वहां पर 57.5% दे रहा है। जहां पर राज्य सरकार 35% दे रहा है और उद्योग क्षेत्रों में जो उसका कंट्रीब्यूशन है 7.5% उद्योग क्षेत्र का लोग इंस्टीट्यूशन में देने वाला है। तो ये व्यवस्था से ये तीनों कॉम्बाइंड जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का व्यवस्था निश्चित रूप से होगा। और सरकार माननीय HID मिनिस्टर बोला है जो जितना उनका हेल्प चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हेल्प देगा। बाकी जो 15 IIT ट्रिपल आईटी से इसमें अच्छी तरफ चल रहा है। सर मैं एक रिक्वेस्ट मंत्री से इस टाइम में करना चाहता हूं, गुवाहाटी में ट्रिपल IIT नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण जगह है, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में तो नेशनल इंपोर्टेंस हो गया। इसमें हम लोग का ऐसा आप जानते हैं सर, वाइस चेयरमैन सर, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स जो युवा था वो पहले बंदूक पकड़ता था, बहुत एक्सट्रीमिज्म था, सेपरेटिज्म था, बहुत कुछ था। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जब सत्ता में आए उसका बाद आप देखिए नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। कितना बार वो नॉर्थ ईस्ट गया ये आप मालूम नहीं कर सकता। हर समय प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट पहुँचते हैं। हम लोग का होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर नहीं था, एक टाइम ऐसा था कांग्रेस का ज़माना में, एक प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट बाय बाय बोल दिया था, माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोल के छोड़ दिया था चाइनीज एग्रेशन में। लेकिन इस टाइम में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर इसको अपना रहा है, इतना अपना रहा है कि हर मंत्री को सेंट्रल मिनिस्टर को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग भी कभी कभी हम लोग का भाषा का भी प्रॉब्लम है। मेरा पास अरुणाचल का MP बैठा हुआ है, उसका भी हम लोग का लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है। हम लोग ना हिंदी बोल पाते हैं अच्छा, ना इंग्लिश, इसीलिए हम लोग का प्रॉब्लम भी होता है। फिर भी अपनाने के लिए जो दिल में बसाया, जितना सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, इन लोग हम लोग को नॉर्थ ईस्ट को बिठाया, इसमें थोड़ा ध्यान दिया। फिर देखिए एक्सट्रीमिज्म खत्म हो रहा है और ऐसा हो गया है कि हम लोग इंडिया का पार्ट है, इसको माना जाता है। अगरतला को इसमें इंक्लूड करके बहुत अच्छा किया। कल देखा मैं एक विरोधी पक्ष वहाँ पर बोल रहा था, वामपंथी और त्रिपुरा में
त्रिपुरा का तरक्की हो रहा है और अगरतला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने जो व्यवस्था किया है इसमें मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, गुवाहाटी को महत्व इसीलिए देना चाहिए, इट इज ए हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, इसको अगर बढ़ावा दें। मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में कितना खराब था, अभी हम लोग का गवर्नमेंट आने के बाद, बीरेन सिंह आने के बाद कितना अच्छा हो गया। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसका तरक्की आगे जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी इसको ध्यान में लाए। और मैं एक बात सुन रहा था, ये परिसर क्या होगा, इसका प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ आदमी बोलते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIIT का बात जो बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी बहुत सेंसिटिव आदमी है, हम लोग का बहुत गवर्नमेंट सेंसिटिव है। डायरेक्ट नौकरी तो होगा, लेकिन इनडायरेक्टली भी डाटाबेस, डाटा एनालिसिस का भी काम होगा और इन लोग खुद का कुछ कर सकेंगे। पूरा वर्ल्ड में इंडियन जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, इसका कुछ कमी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स का। ये ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ेगा और ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ने के बाद कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी खुद कर सकेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब इस दुनिया में, इस तरक्की करने वाला दुनिया में इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इसमें कुछ बोल नहीं सकेगा। आदमी हंसता है कभी कभी, अब तुम लोग का गवर्नमेंट क्या दिया, अरे इन लोग को नेशनल इंपॉर्टेंस बनने के बाद ए स्टूडेंट्स विल गेट स्कोप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉट ओनली इन वर्ल्ड, एवरी वर्ल्ड, सब पार्ट में ये लड़का लोग को, यूथ्स लोग को कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। नॉट ओनली IITs, इवन आप देखिए ITI जो है, स्किल डेवलपमेंट करके, हम लोग का स्किल डेवलपमेंट करके जितना बढ़ाया है, इसको सोच भी नहीं सकता, क्योंकि खाली गवर्नमेंट का ही नौकरी होगा ऐसा तो नहीं है। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स ऑल आर रन बाय दिस यूथ्स, वेदर दे हैव स्टडीड इन IIT और ITIs। और मेरे को कोई बोल रहा था तुम्हारा बिल आ रहा है, रिजर्वेशन क्या होगा। रिजर्वेशन जो है, मंत्री जी बैठा हुआ है, रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट का मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें रिजर्वेशन होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बाकी लोग का जो रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं चाहता हूँ क्या इसमें जो रूल्स है वो रूल्स तो पालन होगा, इसमें कुछ संदेह रखना नहीं चाहिए। मैं मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, वो शायद वो ही इज एग्रीड एंड वो बोल भी रहा है, बोलेंगे भी उसके आंसर में, खाली सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर का भी सोचना चाहिए। हार्डवेयर का सोचना चाहिए, इसीलिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितना भी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, इसमें वो लगाने का व्यवस्था भी है। मोबाइल हम लोग बाहर में बना रहा है, सॉफ्टवेयर हम लोग बाहर बना रहा है, तो सॉफ्टवेयर बाहर से ला रहे हैं। हार्डवेयर का भी इंडिया में कुछ हो, इसका कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखिए बाहर से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, दूसरा कोरिया से आ रहा है। मेड इन इंडिया का ऐसा मॉडल होना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला वोकल फॉर लोकल्स, हम लोग का खुद का आत्मनिर्भर भारत, इसमें भी जोड़ना चाहिए। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा क्या इसको जोड़िए, और इसको जोड़ के डेफिनेटली जोड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बोला है, कैबिनेट ने पास किया है, इसको जोड़ने का व्यवस्था होगा। कोई कुछ बोले वो छोड़ दीजिए, वो विरोधी पक्ष क्या बोलता है उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला, प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत का बात बोला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT में आत्मनिर्भर भारत का व्यवस्था साकार करने का एक मौका मिलेगा और ये मिलने वाला है। सर चेयरमैन सर, मैं ये बात सोच रहा हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर इसमें बोला क्या प्लेसमेंट का बात जो है, प्लेसमेंट डेफिनेटली प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट का ही व्यवस्था है ये जो टेक्निकल एजुकेशन है प्लेसमेंट का व्यवस्था है, नौकरी का व्यवस्था से प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था जनरेट करने के लिए एक व्यवस्था है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो टेक्निकल टर्म्स है वो उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन में वो बोला है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। क्या इसको वो सोचा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सर मैं चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर से क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम LP स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल से इसको टेक्निकल टर्म को सिखाने का व्यवस्था थोड़ा करना चाहिए, तब उन लोग बाद में जाके टेक्निकल आदमी बन सकता है। नहीं तो बाद में मैट्रिक पास करने का बाद उन लोग का मन में प्रॉब्लम आता है क्या पढ़ूं। मैं ये नेशनल लेवल पे इसको देना चाहता हूं और बहुत खुशी हूं क्या नॉर्थ ईस्ट को भी उन लोग ध्यान में रखा, पूरा देश को ध्यान में रखा, जैसे कोई पहले नहीं सोचा था। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक टाइम था जहाँ पर बोला था माई हार्ट गोज टू पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे नहीं हुआ, मेरा हार्ट में बस गया। प्राइम मिनिस्टर बार मोदी जी बार बोल रहे हैं क्या नॉर्थ ईस्ट देश का इंजन है, इसको आगे चलाना चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट का आदमी पहले जो महसूस करता था ऐसा नहीं होगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट IIIT
जो देश का तकनीकी क्षेत्र में जो लाना चाहता है, जो इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में लाना चाहता है, मैं सोच रहा हूँ हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का नेतृत्व में, और हर मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को कुछ ना कुछ देने के लिए व्यवस्था कर रहा है। इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ। और वर्ल्ड मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में जो विचार है, इसको आगे बढ़ाए। मैं इसी बोल के मेरा ये बिल पर समर्थन करके मेरा वक्तव्य में समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कामाख्या प्रसाद तासा जी। श्री ए विजय कुमार जी, लोकसभा. श्री ए विजय कुमार जी फ्रॉम लोकसभा, Yeah. Thank you, Chairman. प्लीज Sir. प्लीज। Lok Sabha passed the IIT Technology Laws Bill 2020, the Indian Institute of Technology, Information Technology Act of 2014 and Indian Institute of Information Technology Public-Private Partnership Act 2017 are the unique initiatives of the Government of India to impart knowledge in the field of information technology to provide solution to the challenges faced by our country. Introduction of the Indian Institute of Information Technology Laws Amendment Bill 2020 will amend the Principles Act of 2014 and 2017. It will grant statutory status to 5 Indian Institutions of Information Technology in public-private partnership mode at Surat, Bhopal, Bahalpur, Agartala and Raichur, and declare them as institutions of national importance along with the already existing 15 Indian Institute of Information Technologies. Under the Indian Public-Private Partnership Act of 2017. Speaking after the passing of the bill, Union HRD Minister Nishank thanked the members of the House for their support in passing the bill. Sri Pokhriyal ji said that the bill will encourage IIITs to promote the study of information and technology in the country through their innovative and quality methods. The minister said that the bill will declare the remaining 5 IIITs PPP along with the existing 15 Indian IIIT in public-private partnership mode as institution of national importance with powers to award degrees. The minister said that under the leadership of the Prime Minister Modi ji, our Indian institutions are performing well in global institutional rankings, and he hoped that in future all the IIITs will also make a mark in the world's top institutions. He informed that among the higher education institutions in the country, the Indian IIITs have improved their global rankings significantly. There are now 24 Indian higher education institutions in the QS list of 1,000 global institutions in 2020 against 14 in 2017. Similarly, there are 36 Indian higher education institutions in Times Higher Education Global 1,000 institutes against 3 in 2013. He assured that with the step, all the institutions will be able to spread the information related to the information and technology in the country in a better way. Our minister informed that this bill was entitling them to use the nomenclature of Bachelor of Technology, Master of Technology, and PhD degree as issued by the university or institution of national importance. It will also enable the institution to attract enough students required to develop a strong reach base in the country in the field of information technology, he added. IIITs are envisaged to promote higher education and research in the field of information technology. Under the scheme, a setting up of 20 new IIITs in public-private partnership mode as approved by the Union Cabinet in 26/11/2010. 15 IIITs are already covered by the IIIT PPP Act 2017, while remaining 5 IIITs are to be included under the schedule of the Act. The objective of the present proposal is the formation of IIITs at Surat, Bhopal, Bhagalpur,